Assalamu alaikum. Hello and welcome to another podcast. Today we are in University of Engineering and Technology with one of our very special guests. In fact, we are guests क्योंकि हम लोग UET में आए हुए हैं. But I'd like to thank him a lot for giving us time and space as well. मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दूंगा that he is one of the person who started the Incubation Center in UET, Technology Incubation Center. He is the founder and currently managing it as well. It's a world in itself. So there is a lot that we are going to talk about it. Alongside that, he's been a teacher as well. Entrepreneurship. मेरे अपने टीचर भी रह चुके हैं back in 2013 I believe. और तब हम लोगों को ज़्यादा ये fancy word का नहीं पता था कि entrepreneurship होता क्या है. So I would quickly like to thank him and welcome him to the show. Assalamu alaikum Farhan bhai. जी वालेकुम सलाम. Thank you for inviting me over जी. Thank you so much for taking our time. It has been an honor कि आपने अपना ये time निकाला. We'll definitely get to learn a lot from your side. Hopefully. आजकल क्या चल रहा है? आजकल इंक्यूबेशन में तो बड़े अरसा से एक ही चीज़ चल रही है, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप. लेकिन इसी के अंदर यू गेट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट. सो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग. Exactly, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था it's a world in itself. It is. क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सा रोम अराउंड कराया, हमारी पहले बात हो रही थी that I definitely like to talk about in detail. Sure. First of all, I would want you to just let us know a brief of who you are, because at such a young age you're doing a lot of startups. So we know कि आपका journey क्या रह चुका है, all of those people जो आपको जानते हैं, but those who do not know you, तो उनके लिए a brief highlight of Mr. Farhan Riaz, who is Not young anymore, I believe. But ये कि my name is Farhan Riaz. I run the startup incubation center, technology incubation center in UET Lahore. खुद बेशुमार चीज़ें करता रहा, फेल होता रहा. Been talking about that in the previous podcast with some other people. तो but ये है कि startups जो है it's more about learning about your own self. खुद ही जो हम बात करते हैं, तो मैं अभी तक एक्सप्लोर कर रहा हूँ. बट ये है कि Alhamdulillah, going good. Running the incubation center, some of my own ventures on the side. So going good, Allah का शुक्र है. माशाल्लाह माशाल्लाह. Right, so having said that, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग टॉप टीयर्स के अंदर हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर, they do not belong to the tech field. तो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? I'm an engineer. Okay. और I used to hate it back then क्योंकि हमारे अक्सर औकात शायद वो पढ़ाने का अंदाज, और मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो शायद इंस्पायर नहीं कर पाते हैं या कुछ होता है, या हमारे अपनी गलती एज अ स्टूडेंट भी गलतियाँ होती हैं. बट बीच में एक फेज आया, आई स्टार्टेड not liking engineering. But yeah, okay, now I believe engineering teaches you a lot. Problem solving. It's all about problem solving. एक system के जी inputs and outputs, what happens in between system. तो ये चीज़ systematic thinking, problem solving engineering बहुत अच्छी सिखाती है. तो I'm a mechatronics and control engineer. I did my masters in engineering management, जो कि थोड़ा बहुत engineering MBA FV में. तो that's what I've been. I studied in. और बाकी मुझे लगता है अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ और scholarship पे. But ये कि the process, the learning never ends. Exactly. So you studied from Pakistan or? I was born and raised in Saudi Arabia. Oh, okay. फिर उसके बाद we came back here in Pakistan, did my O levels, A levels यहाँ से, फिर UET लाहौर से, such deja vu. तो I did my engineering. तो बाकी यहाँ से जी. So what goes around comes back around वाला सीन हुआ आपके पास कि यहीं के स्टूडेंट और यहीं पे आके दोबारा सर्व करने लगे. इसके पंजाबी में भी मिसालें हैं, वो मैं मेंशन नहीं करूंगा. लेकिन let's call it a boomerang. Exactly. All right, so I'd like to get a brief career highlights of yours, क्योंकि आपकी career journey के अंदर you've been a teacher as well, you've been running some startups as well. So just give a brief highlight of your career from the start. I don't think so. I'm not career oriented at all. तो मुझे नहीं लगता I've had a career in the conventional terms. पढ़ाता जो मैं रहा था, it was one of the most entertaining and educational for me as well. Taught me a lot. बहुत कुछ दिलचस्प हुआ, सीखा. लेकिन ये कि वो मेरा adjunct faculty, visiting faculty में था. It was not a full time affair. Okay. तो बस मेन यही था तब से, शुरू से और अब तक यही है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स करता था, फेल करता था, moved on. The only good thing what I've done is I haven't quit. Yeah. That's the only good thing. कोई तीर नहीं मारा. तो एवी मैं सूडो इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करूँगा. बस ये है कि स्टिल लर्निंग, और क्विट नहीं किया.
हाँ, दूसरी अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। Okay. तो आई नेवर गेट मंडे ब्लूज। दैट्स अ वेरी गुड फिल्टर बाय द वे, हाँ, कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं जिस जो आपको पसंद है, या जैसा स्टीव जॉब्स कहता था, फाइंड समथिंग यू लव एंड लेट इट किल यू। तो yes. वो अगर क्लीशे में हम कह देते हैं कि जी आई एम डूइंग व्हाट आई लव, लेकिन अगर मंडे को उठते हुए आपको तकलीफ होती है, मंडे ब्लूज होते हैं, तो मे बी इट्स रॉन्ग। Exactly. तो खैर मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल किए। प्रीवियस कुछ पॉडकास्ट में हैड बीन टॉकिंग अबाउट दैट। तो दैट्स प्रीटी मच इट, स्टिल लर्निंग। Right. मेरे एक पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था that you're running a startup as well and you have done job as well, if I'm not wrong, right? यही मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब है, इनक्यूबेटर जो है, और होपफुली यही लास्ट है। What do you think for any of the young generation, उनके लिए जॉब करना ज़रूरी है पहले स्टार्टअप से, वो धक्के खाने ज़रूरी हैं, या फिर ये वर्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है या जो वर्ड स्टार्टअप है जो कि हैशटैग के साथ यूज़ होना शुरू हो गया है, छोटा सा आइडिया आ गया और लोग कहते हैं कि बस नाउ इट्स माई टाइम एंड आई विल डू वंडर्स। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल आती है, बहुत से ख्यालात आते हैं, बट व्हेन डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम फॉर एनी ऑफ द इंडिविजुअल टू गेट इनटू इट? So there's like twofold. आप ये पूछ रहे हैं कि जॉब करना चाहिए कि नहीं करना? Yes. Okay, it's a very frequently asked question, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को, and there is no right or wrong answer to it. मेरा ख्याल है इसमें आप खुद का SWOT analysis कर लें. Who are you? Who is Farhan? अब honestly, because I've never done professional job anywhere, और ये मुख्तलिफ नौइयत का है, तो आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि यार मैं कौन हूँ, जो खुदी, जो अलामा इकबाल वाला जो चीज़ है, खुदी या मास्टरी ऑफ सेल्फ। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द प्रोफेशनल साइड आपको बताता है कि आप कौन है, जॉब में शायद नहीं पता चलता। तो खैर, माय पॉइंट कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको देखना होगा आपका वर्क एथिक कैसा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारे यहाँ हम डेवलपिंग कंट्री के एमी के नवाब हैं बिला वजह के। पहले माशाल्लाह, आई रियली कमेंड यू, यू हैड बीन वर्किंग सिंस द डे आई मेट यू, और वो हसल और ग्राइंड हमारे यहाँ नहीं है जनरली। तो वर्क एथिक नहीं डेवलप्ड होता मेजॉरिटी लोगों का। बहुत सारे लोग हमारे इंक्यूबेटर में भी, हम अब 160 से ऊपर स्टार्टअप्स इंक्यूबेट कर चुके हैं अभी। आज वी वर कैलकुलेटिंग सम डेटा, सम ट्रेसर स्टडी, सो वी हैव हैड सम गुड सक्सेस रेट। बट जनरली इवन हमारे इंक्यूबेटर में भी, अभी मैं वाई कॉम्बिनेटर, सिलिकॉन वैली की बात नहीं कर रहा, जिनके हम मिसालें सुनते हैं वो आउटलायर्स हैं। Those guys are really good. Those guys are अल्लाह की तरफ से, they are blessed. तो वो एक आपकी जो स्टेटिस्टिकल एनॉमली है, तो जनरल मेन स्ट्रीम जो कि हम मेजॉरिटी ऑफ अस आर, तो आपको देखना पड़ेगा आपका वर्क एथिक क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उसको देखते हुए आई बिलीव, शुरू में आई यूज्ड टू थिंक डिफरेंटली, for the masses it's really good to do jobs, but where do you do job, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसी एमी किसी जगह पे मत करें, whatever your goals are, or oftentimes we are exploring, हम खुद जान रहे होते हैं कि यार हमने करना क्या है, और what we are meant to do, what is our purpose, that concept of ikigai जो जापानीज भी है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स, there are two options जो आजकल चल रही हैं, और चंद और हैं कि डॉक्टर इंजीनियर हमारी पूरी कौम ने बनना है, अब CSS भी करना है। तो लेकिन अदर देन दैट अगर आप देखें तो मल्टीनेशनल्स और स्टार्टअप्स, सो बोथ ऑफ देम आर रियली गुड। मल्टीनेशनल आपको काम करना सिखा देती है, और स्टार्टअप्स में भी, इफ दे हैव रेज्ड फंडिंग एंड यू बिलीव इट्स अ रॉकेट शिप, इवन इट कैन बी अ सिंकिंग शिप एज वी हैव हैड फ्यू इन द last few years unfortunately, but it teaches you a lot. It teaches you that grit, काम कैसे करना है, वर्क एथिक क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजरियल स्किल्स क्या है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मेरा ये ख्याल है फॉर द नॉर्मल मैसेस स्वॉट के बाद, बट जॉब कुछ अर्सा करें, लेकिन ये एक ऐसा दलदल बन जाता है कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, हैमस्टर व्हील। तो वो चीज़ मुश्किल है कि उसके बाद, बट स्टिल जॉब टीचेस यू हाउ टू वर्क, और ये बड़ा ज़रूरी है। आई होप आई आंसर, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सवाल है तो जवाब भी थोड़ा that's okay. The other part of the question was that when do you think is the right time for any of this
young people, part of these people who are young, के अभी हम लोग एक डिग्री कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद हमारे जहन में कुछ आइडियाज़ आए हैं, तो आई एम गोना डू इट राइट अवे, क्योंकि आपको रिसेंटली पता लगा होगा, मतलब सबको पता है कि अमेज़ॉन की हम लोग ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देनी है। वो हम लोग बहुत सी स्टोरीज देख लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो 10-15 लाख रुपए कमाना शुरू हो गए। तो I don't think that it is equivalent for every single individual to go in that direction. What do you think? When is the right time for a person to begin with something on his own? अगेन ये आपके मेरे ख्याल से गोल्स पे डिपेंड करता है और आपकी जो सलाहियत है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट कि कुछ फैड्स, कुछ ट्रेंड्स चल जाते हैं। पहले पूरी दुनिया शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रही है, आई ऑल्सो डिड दैट। फिर अमेज़ॉन FBA आ जाता है, इट्स अ वेरी गुड मॉडल। फिर बहुत सारे और लोग कभी कुछ कहते हैं जी कि कैनवा से कर लें सारा, बट मेरा ये ख्याल है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो काम कर रहे हैं, इट्स द money you'll make is directly proportional to the value you create Yes. and the leverage you have. Yes. तो ये जो मॉडल्स हैं इनका लेवरेज बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, बट क्या ये वाकई बड़ी स्किल है या क्या वो आपको वो लेटर ऑन फुलफिलमेंट देगी? समटाइम इट्स वेरी गुड फॉर सम यंग किड्स, दे गेट सम मेक सम गुड कैश, गो कचिंग, और वो फिर सेव करके दे मूव ऑन, सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, अ वेरी गुड लॉन्च पैड इंडीड। बट व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट, इसका तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आपके जहन में आ गया एक चीज़, यू जस्ट जंप राइट इन। लेकिन फिर उसको ऊपर स्टिक करके रहना, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, क्योंकि आई हैड बीन अ विक्टिम ऑफ दैट माई सेल्फ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा था, एंड दैट्स द अल्टीमेट रेसिपी फॉर फेलियर। तो मैं ये अब नहीं रिकमेंड करता किसी को, बट बैक देन मे बी यंग एज में हार्मोनल अपसर्ज होता है, बच्चों ने माननी भी नहीं। वी डील विद सच फाउंडर्स एवरी डे, एंड दैट्स लाइक अ डाइकोटमी, या थोड़ा सा अगर फाउंडर बात मान जाएगा तो वो शायद एंटरप्रेन्योर ही ना होता। बिल्कुल ऐसे। तो वो हम सारे थोड़ी से टेढ़े DNA वाले होते हैं in a good way, so कि we're not generally not coachable, but we have to be. तो बात ये है कि focus is very very important when you have a lot of energy, तो आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो हर चीज़ करके फिर ये होता है कि ultimately you fail. बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद भी यही था, क्योंकि a lot of people who have gone through a lot, we need to learn from their experiences. जो like you said कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है और हमारे पास बहुत एनर्जीज होती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। So this young age is actually equipped with a lot of positive energy, और जो कि सही जगह पर एग्जर्ट ना हो रही हो तो it hurts. I think that you need to do your maths before you begin in anything and have proper goals, I think. What do you say? 100% goals are very important. Definitely सब कुछ रिलीजियस एंगल से देखें, अल्लाह ताला हैज़ इट प्लान फॉर यू। हर एक का मुख्तलिफ जर्नी है, तो आप किसी से जर्नी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपकी एक अलग कहानी है, हर एक की अलहदा, हर एक का एक अलहदा सफ़र है और डेस्टिनेशन भी फ़र्क है। बट अदर देन दैट आई बिलीव यू स्टिल अल्लाह से दुआ करके हैव सम गोल्स, राइट डाउन। इट साउंड्स वेरी क्लीशे, वेरी वू वू, लेकिन ये है कि आप गोल्स लिखें। मेटाफिजिकली मैनिफेस्ट करता है नहीं करता, ये बहस इस वक्त नहीं है, लेकिन आपके जहन में रहता है कि दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। तो गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पुरानी एक रिसर्च भी थी कि स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएटिंग बैच में, मैं लंबी कहानी में नहीं जाऊँगा, जिन लोगों के 3% हैड रिटन गोल्स, 20 साल बाद जब दोबारा उन्हें सर्वे किया गया तो वो बाकी 97% से फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली दे वर लिविंग अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। तो राइट डाउन योर गोल्स एंड दैट गिव्स यू क्लैरिटी। बट आपके गोल्स, अब ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बात है, वो आपकी वैल्यूज से अलाइंड होने चाहिए। अगर आपके गोल्स जो हमें दुनिया बता रही है उससे अलाइंड है, हम थोड़ी शो शाह के चक्कर में, तो मुख्तलिफ सोसाइटल कंडीशनिंग के चक्कर में, तो फिर अल्टीमेटली आप यू वोंट बी सैटिस्फाइड, आप वोंट बी फुलफिल्ड, या वो एक खला सा रह जाएगा और आप बोलोगे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे फाउंडर्स। तो यू नीड टू हैव अ हायर पर्पस जो कि तरतीब में हो, लेकिन शुरू से भी कि नीड टू गिव बैक इन एनी वे यू कैन। तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि मिलियनेयर या एक ख़ास लेवल पे फाइनेंशियली जाएंगे आप करेंगे। बहुत सारे लोग, आप भी कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह और लोग भी, कि राइट वे आप कंट्रीब्यूट करें।
आप सोशल प्रोजेक्ट्स करें मुख्तलिफ एनी गिव बैक इन एनी वे यू कैन Exactly. तो दैट गिव्स यू द हायर पर्पस बट एनी वे राइटिंग डाउन गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव और फिर उसके साथ व्हाट हमारे पास बहुत सारे फाउंडर्स यूनिवर्सिटी के तवसल से स्टूडेंट्स भी आते हैं सर बाहर पढ़ने जाना है क्या करूं फलां चीज़ कर लें क्या तो पहले तो मैं कहता हूँ नॉट अ गुड पर्सन फॉर एडवाइस इस तरह के एकेडमिक मामलात में लेकिन जो भी है मेरे ख्याल से आपके गोल्स एंड योर वैल्यूज़ सर्व एज अ गुड बैरोमीटर कि आपने क्या फ़ैसला लेना है अगर वो चीज़ आपको चाहे वो जॉब है चाहे वो बाहर पढ़ना है आपके गोल से करीब लेके जाती है गो फॉर इट बट अगर दूर लेके जाती है drop it maybe. Right. There is one of a very, very nice quotes that I always quote is like, plan your work and work your plan. 100%. So when you work your plan, वो रास्ता सीधा नहीं होता. उस पे काम करने के लिए आपको बहुत से different routes, different channels करने पड़ते हैं. But at the end, when you are very much clear that that is your destination and you need to reach there, तो फिर पता पहुंच ही जाता है. Yes. Or clarity. Exactly. Clarity is very important. Now, having said that, clarity. One of the very important questions that I'd like to ask you is career counseling. Students. आपने मंडे ब्लूज की बात की सबसे पहले कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को नहीं पता होता खुद को कि उन्होंने क्या करना है और मुझे ऐसा लगता है मे बी आई एम रॉन्ग बट जितनी मैंने मार खाई है लोकल मार्केट के अंदर आई थिंक दैट पीपल आर नॉट वर्किंग इन द राइट एरिया फॉर विच दे आर मेंट फॉर बहुत सी ओकेजन्स के ऊपर. What do you think about career counseling and making the right decisions to, select what do you want to do so that you do not get the Monday blues? I always used to think, I still do think कि ये बहुत important है और मेरे ख्याल से साइकोमेट्रिक टेस्ट्स जो हो जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं दैट गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ हु यू आर और अल्टीमेटली आपको क्या पसंद आएगा और वो चीज़ जो है वो बहुत पहले से आपके हाई स्कूल टाइम से डेवलप हो जाती है आई बिलीव लेकिन हैविंग सेड दैट कुछ लोग कह सकते हैं कि जी मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद जिस तरह मैंने अभी बात की इट्स हेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई स्टार्टेड हेटिंग दैट इंजीनियरिंग लेकिन नाउ वो देर आए दुरुस्त आए बट नाउ आई थिंक सो कि इंजीनियरिंग इज़ रियली गुड तो एट टाइम्स आप खुद भी तब्दील हो रहे होते हैं आपकी लेयर्स जो हैं उतर रही होती हैं कुछ नहीं आ रही होती हैं पॉइंट करियर काउंसलिंग में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे जब आप बच्चे होते हैं और आपने सुपरमैन या कोई सुपर हीरो बनना होता है टू द पॉइंट जी हमने फ़लाँ चीज़ करना है डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है CSS करना है और स्टार्टअप करना है बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद योर एक्सपीरियंसेस विद योर न्यू लर्निंग लेकिन कुछ मैक्रो लेवल पे माइक्रो कैन ऑलवेज चेंज मैक्रो लेवल पे मेरे ख्याल से आपकी कोई ना कोई तरजीहात एक टिल्ट एक ज़रूर होता है तो वो हम पहले अर्ली ऑन एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सम पीपल माइट बी आर्टिस्टिक देर मे बी देर नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग और समथिंग टैक्टिकल अकाउंटिंग रिलेटेड या चीज़ें तो वो शायद म्यूज़िक फिल्म मेकिंग ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा बेहतर हों करियर काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई बिलीव लेकिन दूसरी चीज़ है योर 20s वो गैरी वेनरचक ऑल्दो वो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी मेन स्ट्रीम एडवाइस होती है बट उसके एक थी वीडियो एंड आई लव दैट 20s शुड बी फॉर एक्सपेरिमेंट्स अब ये हमारे माशरे में करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो यू हैव टू गेट मैरिड ASAP और क्योंकि हमारा कल्चरल साइकिल कुछ ऐसा है बट 20s शुड बी फॉर एक्सपेरिमेंटिंग और करियर काउंसलिंग प्लस योर एक्सपेरिमेंट्स gives you data कि जी आगे क्या करना है तो 30s can be a better time कि जी आप उस चीज़ पे फोकस कर लें so something like that I hope I answered right no that was very much explanative from your side already and thank you so much for that अच्छा मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपके failures के बारे में I would not talk कि क्या किया but just the highlights so that it's not about कि मैं fail क्यों हुआ मैंने उससे सीखा क्या ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं किया a thing that we have done wrong and if we go ahead and try that again how better we can be once we have learned something because I think for all of our students who are getting into the industry now be it any industry not सिर्फ हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे it can be anything right तो उसके लिए सबसे पहले जानना कि हिम्मत नहीं हारनी क्या गलत फैसले हैं ऑपरेशनल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद आपके लीडरशिप के गलत फैसले हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के गलत फैसले हो सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड इज
what sort of bad experiences and failures you've had in the previous past, and what is the lesson that is to be given out to the people के ये नहीं करना. कुछ अभी हम बात कर चुके हैं थोड़ा सा, बट आई बिलीव इट नीड्स टू बी रिपीटेड कि डोंट लूज फोकस. एक चीज़ पकड़ लो पहले, हाँ उसमें वक्त लगा लो, एक्सप्लोर कर लो, बट जो आपको वाकई लगता है कि यू लव इट, पैशनेट है उस पर. नंबर 2, इट हैज़ अ गुड ग्रोथ ट्रेंड. उसकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो श्रिंक तो नहीं कर रही, या वो चीज़ क्या कहना चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इट कैन बी अ वेरी गुड व्हीकल. तो आपने गाड़ी चूज़ करनी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, तो दैट ट्रेन शुड बी लीडिंग टू सम ग्रोथ, तो गुड बिगर मार्केट साइज. बट आफ्टर दैट फिर उस पर जस्ट स्टिक टू दैट, काइंड ऑफ गेट मैरिड इन अ वेरी मोनोगैमस वे. तो बस आप स्टिक टू दैट, स्टिक टू योर गन्स, फिर उसको पकड़ के फोकस ना लूज करें. और ये बहुत मुश्किल है, दैट काइंड ऑफ लेजर शार्प टनल विजन, एक फोकस डेवलप करना. पहली तो ये बात. दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ गेट अ मेंटोर. इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई कैड सेव अ लॉट ऑफ माई ईयर्स. अब ये इन हाइंडसाइट कहना, इन रेट्रोस्पेक्ट कहना ज़्यादा आसान है, उस वक्त नहीं समझ आ रही होती बंद. लेकिन ये है कि फोकस, गेटिंग अ मेंटोर, इट्स लाइक अ हैक. आप वक्त अपना बचा लेते हैं. और जो मेंटर, हाँ, चूज़ योर मेंटर वाइजली, नॉट ओनली फ्रॉम द सोशल मीडिया और फ्रॉम सम इंटरेस्टिंग. इफ समवन इज़ अ गुड स्पीकर, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो अच्छा मेंटोर होगा. जहाँ आप जाना चाहते हैं, कोई बंदा वहाँ अगर पहले जा चुका है, प्रोफेशनली स्पीकिंग, जस्ट शैडो हिम और हर, चाहे फ्री काम करना पड़े. हाँ, इसकी सिलेक्शन बहुत एहतियात से कीजिएगा, बट वंस यू हैव डन दैट, शैडो हिम और हर, एंड दैट्स द थिंग आई बिलीव. Right. You started some of your one of your companies back then when you were teaching as well, and you ended it, right? वो आपका अपना सिर्फ स्टार्टअप था, or you partnered up with people? हमारे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने स्टार्ट की और वो एंड हुई, जिसमें मैं आई डोंट लाइक टू प्ले ब्लेम गेम्स. मेरे ख्याल से गलतियाँ मेरी अपनी ही थी, और मुख्तलिफ आप अपने एक्सपीरियंसेस सीख रहे होते हैं. तो एक तो ऐसा फोकस वगैरह की बात मैं कर चुका हूँ. तो कभी कभार पार्टनरशिप में ये मेरे तरफ से भी हो सकता है या दूसरे एंड से भी. हम एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं होती है हमारी. हम कहते हैं जी आज अ पर्सन ए पार्टनर्स विद पर्सन बी, आप और मैं पार्टनर कर लेते हैं. अभी हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि यार फरहान तो काम ही नहीं कर रहा, या आपने एक बात कही थी वो आप करना भी चाह रहे हैं, यू पुटिंग इन एफर्ट, वो रिजल्ट नहीं आ रहा. तो इस तरह से प्रॉब्लम कहाँ आता है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में. तो मैं जिस तरह एक हम स्टार्टअप्स में भी कहते हैं जी बिजनेस मॉडल कैनवस, तो मैं कहता हूँ देयर शुड बी अ थिंग जो थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से ड्राफ्ट किया हुआ है, बिजनेस मॉडल कैनवस की तरह पार्टनरशिप कैनवस. ओके. सिनारियोस प्रिडिक्ट कर लें, व्हाट वुड हैपन अगर मैं ये सही नहीं करूँगा फिर क्या होगा. कंटिजेंसी प्लान कह लें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तुम अगर जो पार्टनर्स हैं वो ये नहीं करेगा तो फिर क्या होगा. अगर आप अच्छा डिलीवर कर जाते हैं तो फिर क्या होगा. सेल्स नहीं हो रही, देन व्हाट्स द बैकअप प्लान. तो इस तरह से मेरे ख्याल से कुछ हद तक हमारे पास एक साहब आते थे सिलिकॉन वैली से, तो वो एक बड़ी मज़ेदार बात कहते थे, आई ऑफन रिपीट दैट, कि गोरे कहते हैं कि वो लोग, गोरे लोग बिज़नेस करने से पहले लड़ते हैं और हम देसी जो हैं बिज़नेस करने के बाद लड़ते हैं. तो पहले लड़ लो, पहले सिचुएशन प्रिडिक्ट कर लो, सिमुलेट कर लो, फोरकास्ट कर लो, ये भी हो सकता है दिस कैन गो रॉन्ग, और उसको राइट इट डाउन. नेचर ऑफ बिजनेस टू बिजनेस वो वेरी करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रिडिक्ट कर लें. और मेजॉरिटी मसाइल इसी पे आते हैं जी कि तुमने ये कहा था ये किया नहीं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, इट वुड बी लाइक एकदम ही रॉकेट शिप बन जाएगा, हॉकी स्टिक ग्रोथ होगी, रियली हैपन्स. तो फिर जब वर्स्ट पार्ट आता है तो फिर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, पार्टनर्स भी नहीं अच्छे लगते, अदर वे अराउंड. तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड देन हैव अ प्लान फॉर दैट. Exactly. So, if I need to summarize that, आपको क्या लगता है कि would it be okay that we call it role definition in the partnerships and writing the rules down and acting upon it? Role definition for sure. कितना अच्छा, it should not only be hours dependent, ये इतने घंटे में दूंगा. Exactly.
आउटपुट डिपेंडेंट अभी होना चाहिए, लेकिन कभी कभार आउटपुट भी आ गया तो कोई एक पार्टनर में वो रिजेंटमेंट बनना शुरू हो जाती है, मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, ये 3 घंटे भी नहीं करता, इसने तो बड़ी बातें कही थी या फलां बंदे ने जी कि मैं वो इन्वेस्टर ले आऊँगा, ये कर लूँगा। हमारे यहाँ 160+ स्टार्टअप्स हो गए, हर कुछ दिन बाद पंचायत लगी होती है। बिल्कुल तो ऐसे। इंटरेस्टिंगली यू स्टार्ट सीइंग पैरेंट्स, मैंने अपने भी मोर देन अ डजन जो है वो फेलियर से देखा, फिर 160+ इज़ अ गुड सैम्पल साइज। और हमारे दूसरे इंक्यूबेटर्स भी जो दोस्त हैं, तो हमें पता होता है कि ये जो स्मॉल कम्युनिटी, तो आई सी पैटर्न्स विच रिपीट। तो मेन चीज़ है कि रोल्स, यू राइट, रोल्स राइट इट डाउन, फिर उस रोल से भी मज़ीद उसको अगर आप एलैबोरेट कर सकें, एक्सपैंड कर सकें, कितने, हाउ, व्हाट डज इट मीन, क्या आउटपुट होगा, कब तक होगा, टाइम बाउंड भी कर लें, होगा लेकिन क्या साल बाद होगा, आई मीन लाइक व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, और भी बेशुमार चीज़ें। तो डिपेंड करता है, जो भी आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मैप, हाँ, हैबिट इन राइटिंग सुन्नत भी है, यस हम राइटिंग में कुछ नहीं करते। बिल्कुल, मैं यहीं पे आने लगा और था। एग्रीमेंट्स, यस आपके एग्रीमेंट क्या है, यस। और जब आपको जब ये सब क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आपका एग्रीमेंट भी साउंड होगा। मैं लीगल जार्गन के अलावा की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस के हवाले से, कि जी यार ये चीज़ें हैं, फिर आप एक दूसरे को सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। और कभी कभार एग्रीमेंट्स ना होने की वजह से हो सकता है ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन दोज पीपल हु नो वो एक्सप्लॉइट भी कर जाते हैं। तो एनीवे, लॉट ऑफ थिंग्स। I personally think that when the stakes are involved in equal capacity, then partnership doesn't fall back the way जो कि नॉर्मली करती हैं। स्टेक्स इन्वॉल्व होना, और यहाँ पे जब स्टेक्स की बात करते हैं हम लोग, वो फाइनेंशियल भी हैं, वो आपके अपनी एफर्ट्स भी हैं, वो आपके जैसे मैंने रोल डेफिनेशन की बात की है, उस रोल के अंदर आपकी सक्सेस भी है, उसके आउटपुट्स लाइक यू सेड। सो आई पर्सनली थिंक कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप्स। इट इज़, लेकिन जनरल जो हमारा ट्रेंड है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, स्टार्टअप्स में, 2 पार्टनर हैं, 50-50 के पार्टनर हो गए। क्या आप वैल्यू 50-50 दे रहे हैं? क्या आपका एक्यूमेन वाकई इक्वल है? तो दैट्स जनरली नेवर सिमेट्रिकल, दैट्स एसिमेट्रिकल। तो बहुत सारे आप देखें, और बाहर भी होता है, पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया, एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको शायद रेयरली एडवाइस करें, शायद 2 महीने बाद एक जूम कॉल हो आपकी, वो 5 to 10% सिंगल डिजिट एक्विटी वो ले रहे होते हैं फॉर बीइंग एन एडवाइज़र, बट उनका नाम की होने की वजह से द वैल्यू दे ब्रिंग टू द टेबल इज़ रियली गुड, तो उस चीज़ के ऊपर दे गेटिंग एक्विटी। तो माई पॉइंट इज़ 50-50 करना है तो 50-50 वैल्यू भी आ रही है कि नहीं? 3 पार्टनर हैं तो 33 और 33% है, क्या आप उतनी वैल्यू इक्वल दे रहे हैं? तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ मुझे लगता है इट रेयरली हैपन्स। जिस तरह बहुत आसान अल्फाज में हर बच्चे का GPA बराबर नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग GPA उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, बट माई पॉइंट इज़ सिमिलरली GPA इज़ one output, the way of measuring an output, academic output. Similarly आपके जो स्टार्टअप है, काम है, उसका भी कोई ना कोई आउटपुट है। अगर GPA बराबर नहीं होता, जस्ट ट्राइंग टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, इसी तरह वैल्यू डिलीवर्ड भी हर दफ़ा बराबर नहीं होती। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग हैं, दोनों ने 4 GPA मारा हो, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो देयर कैन बी टाइम्स कि बराबर आप कर रहे हो, बट आई थिंक सो रेयरली हैपन्स। तो यहाँ से भी फिर मसले आना बनना शुरू हो जाते हैं। So that pretty much gives the clarity on risk management with the partnerships. और जैसे कि आपने कहा कि writing things down is very much important, and closing things down in the agreements is it's more important, I think, 100%. because then you will be in a very good shape to know that what you are meant to do within any sort of partnership or collaboration that you're doing with others. 100%. और मेरा साथी तौर पे ख्याल है कि आप पार्टनरशिप में ही होते हैं, आपके इवन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू दे आर हैविंग स्टेक्स इन्वॉल्व्ड एज वेल, क्योंकि उनकी जॉब की स्टेक है सबसे पहले, और आपको उनकी ज़रूरत है, उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने रिस्क जोड़ा होता है 100% हर तरफ से। बिल्कुल। सो यस, गो फॉर इट इफ we are doing it the way that you have told. सबसे important चीज़ that I'd like to talk about is UET के अंदर incubation center कायम करना. When did that happen? How did that happen? Well, it was like
2015 का टाइम था, तो इट वाज ऑलमोस्ट तमाम जगहों पे, लेकिन बिलखुसूस यूईटी में इट वाज प्रीटी एलियन, इंक्यूबेशन सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोनाउंसिंग इट राइट इवन। लेकिन ये कि टैलेंट पूल हमारा बेहतरीन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग विद फैंसी एक्सेंट या ओके ओके जार्गन बोल दी। द टैलेंट पूल माइट बी अ लिटिल बायस्ड, बट यूईटी में तमाम पाकिस्तान से बेहतरीन टैलेंट पूल आता है, तो दैट रियली हेल्प्स। तो लेकिन बड़ा मुश्किल काम था। आपको बहुत सारी और हमारे चंद हायर अप्स हैं कुछ जो कि जिनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थी। अदर देन दैट बड़े मसाइल आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, लॉट ऑफ रेड टेप्स, सिस्टम। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना को, तो आपको इनर्शिया बहुत मिलता है। तो और बट ओवरऑल मसाइल भी थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, बहुत सारी सपोर्ट भी थी। तो नॉनदलेस अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवेंचर सो फार, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हमने अब 160 से ऊपर स्टार्टअप्स इंक्यूबेट कर दिए हैं। जो अभी जो डेटा है वो मैं 145 स्टार्टअप्स का आपको बताऊंगा। वन इट्स नॉट एज बिग एज यूर यूज टू। और थोड़ा सा हम डिस्टिंक्शन में ड्रॉ करना चाहूँगा, तमाम इंक्यूबेटर्स हैं, दे वर्किंग ब्रिलियंटली, हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और स्पेशली होता हमारे साथ ऐसे भी मसले होते रहे हैं, बेहतरीन स्टार्टअप, बेहतरीन फाउंडर गायब हो गए। अच्छा जी, बड़े अरसे बाद किसी कैफ़े में मिल गए, कहाँ थे यार? सर वो अब्बू ने मना कर दिया। कम ऑन यार, लाइक एंड दे वर डूइंग गुड, ठीक है, या कहाँ थे सर? वो असाइनमेंट्स थी। बाकी तमाम इंक्यूबेटर्स, एंड आई बिलीव ये होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं है, वो कहते हैं कि यार सेमेस्टर फ्रीज करो, ग्रेजुएट हो, या सेमेस्टर फ्रीज करो, या जॉब है वो छोड़ो, बिकॉज यू नीड टू गो ऑल इन। एंड आई एग्री विद दैट। जब हम यूनिवर्सिटी बेस्ड होते हैं तो एक वर्ड इन्वेस्टमेंट की ज़बान में भी इस्तेमाल किया जाता है, फाउंडर मेच्योरिटी। तो फाउंडर मेच्योरिटी हमारे बच्चों की अभी तो वो ग्रेजुएट ही नहीं हुए, इट्स वेरी लो। वर्क एथिक पे जो बात की वो भी नहीं होता। तो हमारे थोड़े से चैलेंजेस फ़र्क होते हैं, तो इसलिए द नंबर्स may not sound as good to you guys as जो आप what you're used to listen and read about. 145 स्टार्टअप्स ने 550 जॉब्स क्रिएट किए हैं, more than $1 million in revenue. Only 2 of our startups raised money, which is a very low number for the कुछ हमारी कमजोरियाँ और for the some of the reasons I mentioned, founder maturity and stuff. तो but 550 plus jobs, over $1 million in revenue in गेमिंग से लेके टूरिज्म से लेके ई कॉमर्स से लेके मेनली what UIT is known for, technology. Technology startups, तो अल्हम्दुलिल्लाह our students and our startups have done really good. और 550 जॉब्स बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता, करोड़ नौकरियां हम नहीं दे सकते चंद छोटे कमरों से, बट इट्स प्रीटी गुड अगर आप गौर करें कि वो बच्चे जो साल पहले खुद CV लेके घूम रहे होते, नाउ they are the job providers. Yes. So very humbly, but we take pride in the fact, but it should be multiplied, I agree. तो ये हमारे कुछ numbers हैं। मुश्किल था, but it's very fulfilling. और how did the idea come? I mean, ये जब आपने join किया UT, तो were you the one to initiate it, or the idea मेरे was साथ already चंद लोग present? और थे, I would like to give credit to them, लेकिन कुछ HEC की तरफ से यानी भी ये बात चल रही थी, तो हम one of the first HEC की तरफ से फाउंडेड इंक्यूबेटर। थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, यहाँ HEC की ज़बान में BICs कहते हैं, वी रनिंग बोथ नाउ बाय द वे। लेकिन शुरू में हम खाली टेक्नोलॉजी कर रहे थे, तो थोड़ा सा HEC की तरफ से स्टिमुलस था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट था, तमाम में नहीं, बहुत चंद में, वेरी फ्यू। बट वहाँ से था, फिर कुछ लोगों ने मुझे बुलाया क्योंकि UCP भी था और मुख्तलिफ थोड़े स्टार्टअप्स थे, तो आई वेंट ऑल इन। आई फाउंड आउट कि यार ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। उस वक्त तो इनक्यूबेटर्स थे भी बहुत कम, तो आई थॉट इट वुड बी एन एडवेंचर, एंड इंडीड इट वाज। सबसे आपको जब ऑब्वियसली इंक्यूबेशन के अंदर आइडिया जनरेशन इज समथिंग व्हिच गिव्स यू वेरी गुड एक्साइटमेंट, बहुत से नए आइडियाज़, बहुत से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको आइडियाज़, what was one of the idea that gave you feel कि ये काम मैंने बहुत अच्छा किया, if this idea clicks तो I'll be very very happy कि हम लोगों ने incubation start किया? Ideas are very important, no doubt, so much so। एक जब हमने
यूसीपी में पढ़ाते थे, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन के अंदर हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया था विच आई यूज्ड टू टीच आइडिया जनरेशन एंड क्रिएटिविटी. Yes. वी हैड टू टीच पीपल हाउ टू थिंक, लैटरल थिंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और टूल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ कैन वी हैक द इन्वेंटर्स माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें जो आइडिया सेंटर्ड थी. अब थोड़ा सा हमारा स्कूल ऑफ थॉट इस पर तब्दील हो गया कि आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है. I've seen people make lot of money with stupidest, if that's a word, बहुत ही silly ideas से, क्योंकि उनकी execution on point थी. And I've seen people जिन्होंने बहुत कमाल idea से कुछ भी नहीं किया. ठीक, तो execution is what matters. तो ideas कुछ हैं, मिसाल के तौर पे हमारा एक tourism startup है जो I believe it's one of the top few tourism startups in Pakistan, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी रेवेन्यू करते हैं अपना ट्रिप के नाम से. सो ह्यूज शाउट आउट टू दोज गाइज. तो वो उनका माशाल्लाह बैक देन 350 से ऊपर गाइड्स का नेटवर्क था, तो दे वर एम्प्लॉइंग लोकल गाइड्स, और अब और बढ़ गया. अब वो अपना रिजॉर्ट खोल रहे हैं गिलगित में. सो दैट्स लाइक सोशल इम्पैक्ट. सिमिलरली अगर आप बात करें, बेशुमार और हैं गेमिंग स्टूडियो है, वो माशाल्लाह डॉलर्स में 6 फिगर्स कर रहे हैं. हामिद थे, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द लेवरेज. हाइपर कैजुअल इंडी गेम्स थी, एंड दोज गाइज हु आर इन द गेमिंग इंडस्ट्री दे नो दिस वेरी मच अचीवेबल. बट यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में मसला पड़ गया था, लोग कह रहे थे फोटोशॉप नंबर्स हैं, बट नाउ देव क्रिएटेड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. More than 50 people, और वो आहिस्ता आहिस्ता I'm sure they're on a road to 100, 200, 300 people in the coming years. तो एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कि ये मैं अक्सर कहता हूँ, और दुआ है कि अल्लाहुम्मा यरज़ुक वर्ज़ुक मिन्नी, अल्लाह मुझे रिस्क दे और हम में से लोगों को रिस्क दे, जो हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स को भी अप्लाई होता है. तो आई थिंक सो इट्स रादर स्केरी एट टाइम्स कि अल्लाह ताला आपको वसीला बना देता है. राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है. तो ये चीज़ थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन ज़रूर देती है. कुछ लोगों को लगेगा कि रस्मी रवायती बात है इम्पैक्ट की, बट जो लोग ये काम कर रहे हैं वो शायद इसको महसूस कर सकें, रिलेट कर सकें. तो आई वुड से हर स्टार्टअप इन देयर ओन राइट, इट्स अ स्टोरी ऑफ इम्पैक्ट, ऑफ द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन, और जो कि लेटर ऑन जॉब क्रिएशन की तरफ आएगी. और बहुत सारा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमने देखा, जो लोग अपना मेन स्टार्टअप फेल कर गए, जो यहाँ इंक्यूबेट हुए थे, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरियल बग हमने उनमें इंस्टॉल कर दिया, तो लेटर ऑन वो कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं. Right. आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट बिकॉज यू वर्कड रियली हार्ड, आई नो दैट. आप जो शुरू में चीज़ें कर रहे थे, और आज हमने कुछ बातें की हैं जो आपकी मज़ीद इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे. बट द पॉइंट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड इवेंचुअली आप कोई और चीज़ कर रहे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा. वन ऑफ आवर स्टार्टअप्स, दे स्टार्टेड ऑफ विद परफ्यूम, एरोमा थेरेप्यूटिक परफ्यूम था उनका. अब परफ्यूम भी वो कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, बट आई गेस बंद कर दिया उन्होंने. अब उन्होंने बहुत सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चला रहे हैं. देयर वाज अनदर स्टार्टअप, वो शुरू में ऑनलाइन एक्सेसरीज़ में थे गाड़ियों की, और ना अब वो रैक स्पेसेस और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती हैं. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया, इट्स अबाउट इस पूरे प्रोसेस में आप किस किस्म की एक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हो. बिल्कुल. और आई थिंक मार्केट ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं. आपके मार्केट ट्रेंड्स चेंज होने के साथ आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, और उन मार्केट ट्रेंड्स और इंटरेस्ट को जब आप सिंक करते हैं, देन यू इम्प्रोवाइज, and then you come up with a different idea than what others are doing, or and that actually stand you out in all the other competitors that already there. जब अगर मैं बात करूँ तो तंदूर तो हमारे ज़माने में पहले भी थे, और नान कुलचे सब कुछ चल रहे थे. तो ये माड़ो ने आके चीज़ चेंज कर दी थी, और उसके बाद और बहुत से लोग आए हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन एक आइडिया चेंज कर दिया. शायद जब वो पढ़ने गए थे तो वो माड़ो उनके ज़हन में भी नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है. बट येस, देयर आर रूम. मेरे ख्याल वो लूप होल्स को जब आप चेक कर लेते हैं, दैट यस दिस इज वेयर वी कैन फिट इन, तो यू गेट डिफरेंट. और आप हाँ एक बताते होते थे, मुझे आज भी याद है, एक वर्ड यूज़ करते होते थे कि वखरा क्या है. तो उस एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के अंदर ना वखरा, यूएसपी की जो लोग बात करते होते थे, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट्स योर सिल्वर बुलेट? आपके यूएसपी क्या है, या वखरा जो आप कह रहे हैं, तो क्या डिफरेंट है? वो डिफरेंट ज़रूरी नहीं कि आइडिया में ही हो, वो आपके एग्जीक्यूशन में हो सकता है, आपके बिजनेस मॉडल में हो सकता है,
और बहुत सारी और चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हो सकता है. राइट. अच्छा, क्विकली मैं थोड़ा सा आपको सेगमेंट करने का कहूँगा इस इंक्यूबेशन सेंटर को, कि एक टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर अगर हम लोग इसको कवर करें तो किन किन एरियाज़ के अंदर और कितने लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आर दे डेवलपिंग, आर दे इन रिसर्च, कोई रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैं, IoT है, कंप्यूटर विजन, AI के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं. सो आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट दैट. श्योर. हाँ, एक तो इंक्यूबेटर का आपको जो स्टैट्स मैंने बताए वो हैं यंग स्टार्टअप्स जो स्टूडेंट्स हैं. ओके. अब हमारा एक और साइड है विच इज़ आवर रिसर्च लैब्स. Okay. तमाम यूईटी के और बिलखसूस हमारे अल-ख्वारिज़मी किक्स कहते हैं हम इसको. वी हैव 25 स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लैब्स. Okay. सो हमारा इंक्यूबेटर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वी आर ट्राइंग, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू क्रैक, बट वी आर ट्राइंग कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज कर सकें. तो ये इसी तरह से HEC का एक प्रोजेक्ट है जो ऑरिक्स के नाम से, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. तो यूनिवर्सिटी के ऑरिक्स और इंक्यूबेटर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट. तो हमारा बिकॉज इट्स बिन अराउंड 100 ईयर्स, 100 साल से ऊपर हो गए UET को, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. तो हमारी एक लेगेसी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. और बिलखसूस मे बी आई एम बायस्ड बट अल-ख्वारिज़मी, द किक्स, they're doing wonderful job. और उसके अंदर स्पेशली डॉक्टर वकार हैं हमारे डायरेक्टर. आई रियली रिस्पेक्ट हिम और गिव क्रेडिट टू हिम. अब हमारा इंस्टीट्यूट जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इस्लामिक वर्ल्ड एज फॉर नेशन. ब्रिटिश काउंसिल ने भी हमें वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है रैंक किया है. एंड वी आर वर्किंग ऑन अप्लाइड रिसर्च. तो 25 हमारी लैब्स हैं, 4 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग से लेके कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, एक्सोस्केलेटन पे कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे कर रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे कर रहे हैं. रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है हमारा पूरा UET काला शाह काकू. कुछ गुजरते हुए लोगों ने एक सोलर वॉल भी देखी होगी जब मोटरवे से आप लोग जा रहे होते हैं. तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक रिक्शास पे भी काम कर रहे हैं, एफिशिएंट LEDs पे भी काम कर रहे हैं, और जो है DC मोटर्स जो कम एनर्जी कंज्यूम करती है, ज़्यादा एफिशिएंट है. तो हम बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे कर रहे हैं. उर्दू सर्च इंजन, वी हैव अ होल लैब जो टोटली डेडिकेटेडली सिर्फ उर्दू लैंग्वेज पे काम कर रही है, रेंजिंग फ्रॉम फॉन्ट्स, नूरी नस्तालीक, टू द उर्दू OCRs, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, टू द टेक्स्ट टू स्पीच उर्दू में, और स्पीच टू टेक्स्ट. और वी हैव एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने शुरू किया था लैब ने, तकरीबन 1000 रुपये का क्रेडिट देते थे क्योंकि UET में तमाम पाकिस्तान से लोग आए, तो वी हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स. तो वो तमाम लोगों को वो एक पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने का ना 1000 रुपये के करीब क्रेडिट देते थे. 750, 800, 1000 समथिंग लाइक दैट. तो उसके ऊपर हमने तमाम पाकिस्तान के उर्दू के डायलेक्ट्स वी हैव देम रिकॉर्डेड. तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ देम. तो हम बेशुमार है, 25 लैब्स बताएं, 4 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, hundreds of applied research projects, WAPDA, WASA, Safe City Lahore, similarly Huawei, ट्रेनिंग कोर्सेज, NAFTEC के, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के, PITB के साथ हमने रोज़गार काफ़ी अर्सा चलाया. तो आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स. तो एक हमारी टेक्निकल रिसर्च साइड है जो डीप टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, दूसरे हमारे यंग स्टार्टअप आइडियाज़ फॉर द स्टूडेंट्स मेनली. तो हम इन दोनों को अगर देखें तो आई थिंक सो इट्स दैट गिव्स अस समवॉट जो वखरा की हम बात कर रहे थे. तो यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारे इंक्यूबेटर का मेनली टेक्नोलॉजी है. बिकॉज बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं एंड एज आई सेड ऑल ऑफ देम आर फ्रेंड्स डूइंग वंडरफुल जॉब, बट बहुत से जो टेक्निकल चीज़ें हैं वी हैव गॉट देम. तो हम कहते हैं कि लेट्स प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स. सो आई बिलीव इंक्यूबेटर्स को स्पेशलाइज कर देना चाहिए. देयर आर सम जेनेरिक इंक्यूबेटर्स जो होने चाहिए जो नेशनल लेवल पे हैं, जिस तरह NICs हैं, प्लान 9 है और उनका एक्सपेंशन प्रोग्राम है, तो वो जेनेरिक मेक सेंस. बट अदर देन दैट आई बिलीव स्पेशलाइज कर दें. देयर शुड बी इंक्यूबेटर फॉर मोबाइल गेम्स, देयर शुड बी इंक्यूबेटर फॉर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग में भी. तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं. राइट. सो जैसे आपने कहा दैट यू गाइस हैव गॉट 25 रिसर्च लैब्स एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये 25 रिसर्च लैब्स जो हैं हमारी, मैं खाली अल-ख्वारिज़मी की बात करूँ, अगर मैं पूरी UET की बात करूँ तो वो तो 100+ है हमारे. लेकिन हम मेनली ये अप्लाइड रिसर्च की हैं. तो जो तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी जो वर्क फोर्स खाली किक्स की है, इट्स मोर देन 350 पीपल. दे आर नॉट स्टूडेंट्स
दे आर Okay. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और वो डेडिकेटेडली जो उनकी रिस्पेक्टिव लैब है उस पर काम कर रहे Okay, हैं. I would actually want you to showcase the local talent that we have. Just give us a picture. कि कितने लोग हैं इन रिसर्च लैब्स के अंदर, किन किन टेक्नोलॉजीज किन किन एरियाज पे काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यूटी इज़ इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर, और यहाँ पे मेरा ख्याल है हर छोटे से छोटे कस्बे से, गांव से, बड़े बिल्कुल. शहरों से people are here from all across Pakistan, right? बिल्कुल जी. So local talent का इस वक्त यहाँ पे कितना, इस वक्त how much we are flooded with the local talent here at the moment, and in which technologies? हमारा जैसा कुछ चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेनली. अगर मैं अभी मेजर एरियाज़ के नाम लूँ, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग है, उसके अलावा हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और आईओटी के ऊपर हमारा काफ़ी काम है. तो ये कुछ जो डीप टेक आप बज़वर्ड सुन रहे हैं, तो सब पे हम काम कर रहे हैं. अदर देन दैट जो टैलेंट हमारे पास आ रहा है, ट्रेनिंग और टैलेंट, हम जनरली कहते हैं बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो हैं, लेकिन क्या उनको उस तरह पढ़ाया जा रहा है, अब ये डिफरेंट डिबेट है. क्योंकि इंडस्ट्री में आप किसी से भी पूछें, दे आर नॉट हैप्पी विद यूनिवर्सिटीज़, एंड वी आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Yes. मे बी हम ग्रोइंग पेस, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, हम उसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो शायद वो फैदम ही समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है. एकेडेमिया स्लो होता है. बिल्कुल भाई, ये एक और बात भी यहाँ पे मेरा ख्याल है, थोड़ी सी कोट करना चाहूँगा कि हम लोगों को केस स्टडीज़ पढ़ा देते हैं बाहर के मुल्क की, हम लोगों को यूज़ केसेस पढ़ा देते हैं बाहर के मुल्क के, और उसके बाद यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर धक्के खाने के लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करो. आई डोंट थिंक वो अप्लाई भी होती यहाँ पे. थिंग्स आर डिफरेंट. केस स्टडीज वैसे इट्स अ गुड मेथड ऑफ स्टडीइंग, लेकिन आई बिलीव पाकिस्तानी के लोकल केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly, that और is what बिजनेसेस में yeah. आई लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू माय फ्रेंड डॉक्टर शहरयार, लाम्स में वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं. तो वो और चंद और प्रोफेसर्स हैं जो कि यू कैन काउंट देम ऑन हैंड्स, गिनती के हैं, जो कि लोकल केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं. तो इसका बहुत फुकदान है. Exactly. तो जो, क्योंकि हम, अगर मैं बैक टू इनक्यूबेटर जाऊँगा, शुरू में जब हम यहाँ लॉबी करते थे स्टार्टअप्स के लिए यूईटी में और यूनिवर्सिटीज़ बाकी भी, तो हम कहते जी वैली में फलां ने ये कर दिया, उस स्टार्टअप ने इतना $1 मिलियन रेज कर दिया, इलॉन मस्क ये कर रहा है, स्टीव जॉब ने ये किया, अमेजिंग. बट डीप डाउन बच्चों को लगता है यार थोड़ा अफसानवी है, यहाँ 7 समुंदर पार आप रिलेट नहीं कर सकते. बट नाउ जब हमारी होम ग्रोन, हमारी इंडिजिनस यूईटी की स्टोरीज हैं, क्या केमिकल डिपार्टमेंट के बच्चे ने ये काम कर दिया, कंप्यूटर साइंस की बच्ची है वो 15 बंदों की टीम रन कर रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वो कहते हैं कि यार यूईटीएन है, फलां डिपार्टमेंट से 2 साल मुझसे सीनियर था या जूनियर थी, तो दैट्स डूएबल. तो ये सेम अप्लाइज टू द केस स्टडीज़ जो आप बात कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है लोकल केस स्टडीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है जी. बिल्कुल राइट. कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, द नंबर, आपने कहा ये रिसर्चर्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल. कितने लोग हैं, और ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा दे आर नॉट द रिसर्चर्स आर नॉट द स्टूडेंट्स एज वेल, सो डू यू ओपन द गेट्स फॉर एनी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू कम इन एंड बी अ पार्ट ऑफ दीज रिसर्च लैब्स, और यहीं से निकल के यहाँ पे आके लोग कर रहे हैं? तो नहीं, आई मीन जो टैलेंट पूल है यूईटी लाहौर से हम बहुत सारा टैलेंट आता है, बट नॉट ओनली यूईटी लाहौर, दीगर और यूनिवर्सिटी से भी दिखा मैंने अप्लाई. जो स्टूडेंट ये डिस्टिंक्शन में इसलिए ड्रॉ कर रहा था, जनरली तासुर ये जाता है कि यार ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है, तो ये जो 350 बंदा है ना, ये स्टूडेंट काम कर रहा है. तो एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक प्रिजम्पशन होती है लोगों की कि सारे बच्चे काम कर रहे हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि नो, एमएससी मिनिमम इज एमएससी और एमफिल जो मेजॉरिटी है हमारी. वी हैव लाइक 350 में हमारा 80-90 इंटर्न होगा जो स्टूडेंट ग्रेजुएट, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. 260-70 हमारे जो है वो मिनिमम एमएससी और एमफिल हैं. और वी हैव अ लॉट ऑफ पीएचडीज एज वेल. तो ये इस तरह से it works. I hope I answered some. So now that we are talking about numbers, 350 or more, like you said, what wonders these people can do in the international market? That's interesting. International market is very tricky, और ये थोड़ा सा एकेडेमिया का मसला है, क्योंकि लोकल जब हम रिसर्च कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक, क्योंकि बेशुमार जो हमारी रिसर्च हो रही है उसकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिसर्चर्स, ये अक्सर मैं बात करता हूँ, बड़ी वोकली करता हूँ. तो ये थोड़ा सा हमारी जो
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो लोगों को ये देखना चाहिए कि रिसर्च उसको फंड करें जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, थोड़ा करियर प्रोग्रेशन इस तरह से. बट एनीवे व्हेन यू, जब आप उसको कमर्शलाइज करने निकलते हैं देन यू फाइंड आउट नो वन नीड्स इट. तो फिर हमें मसाइल आते हैं अगेन. यानी हमारी अपनी वीकनेसेस भी होती होंगी कमर्शलाइज करने में, बट प्रोडक्ट मार्केट फिट या रिसर्च मार्केट फिट, वो जो फिट है वो डेवलप करना वो कदरे मुश्किल हो जाता है. बट द अदर थिंग इज़, कभी फिट डेवलप हो भी जाए तो वेयर एकेडेमिया फॉल्स शॉर्ट इज़ इंडस्ट्री का काम वर्क एथिक और पेस फ़र्क है. दे वेरी फास्ट, यूँ काम होता है इंडस्ट्री में. एकेडेमिया में और स्पेशली रिसर्च का मिजाज स्लो है, तो वो दे प्रीटी लेड बैक. तो यहाँ आके एक जो है ना तजाहद आ जाता है. तो अब ये ब्रिज कैसे करना है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, इट्स अ मच टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में. खाली पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, पूरी दुनिया का है. तो ये मसले तो हैं, बट मे बी देयर इज़ होप, मे बी इनको पुश किया जाए तो आई होप वन डे विल बी एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट सम IT टैलेंट. ब्रेन ड्रेन नहीं, यहाँ बैठ के अगर हम एक्सपोर्ट कर सकें टैलेंट IT के ज़रिए, I think so that would be a dream come we are true. talking about augmenting the staff that we have here. I think so that's a good model for everyone. Yes, why not? Because क्योंकि मेरा पूछने का मकसद भी यही था. Like I said that I'm a salesperson, so I think about the opportunities and I think about how to raise our flag in the international market. क्योंकि यहाँ पे talent बहुत है, and like you are telling about the UET research labs and the students and different ideas, because I think that UET does give out funding to the ideas as well, if I'm not wrong. UET खुद funding body नहीं है, rarely does it happen. Generally HEC, Ignite जो National ICT R&D Fund, और there are some other funding bodies. UET के तो वसूल से यहाँ पे funding भी मिलती है ideas को, right? Yes, research ideas जो not startup, it works a little differently. Okay. But ये है कि कुछ मसाइल हैं, once वो solve हों, industry academia linkage हो, तो it can be a inshallah possibility someday. Definitely, because what I personally say and believe is that we have got humongous amount of talent here, but we need to train these people so that they can present themselves in the international market. आप ये सेल्स के हवाले से बात कर रहे हो, आई नो, बट नॉट ओनली दैट, अगर हम स्टूडेंट्स या कुछ और जो स्टूडेंट के अलावा भी स्टाफ को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की बात करें तो अक्सर औकात, विच इज़ सैड, अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं, हम वो स्टैक्स ही नहीं पढ़ा रहे. और ये मैं खाली यूईटी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जी फिर बूट कैंप्स होते हैं, जिस तरह लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वो ट्रेनिंग उन्होंने बूट कैंप्स खोले हुए हैं, एंड दे आर जेनरस इनफ टू सब्सिडाइज एंड समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट के यार आपको ट्रेन करते हैं. तो ये चीज़ तो टेक्निकल एंड सेल्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना टेक्निकल स्किल्स का भी फुकदान है, जो जिसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में. तो उसमें थोड़ा सा इट्स लाइक वी आर लाइट ईयर्स बिहाइंड कि हम वो चीज़ जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है उसको उस तरीके से करा सकें. और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाती है, वो लेयर्स आ जाती हैं, टाइमली डिलीवरी यहाँ आके कुछ because let's talk about the competitive market that we have in Asia. We've got India, a very huge market, और वहाँ पे हर दिन हर माह बहुत से स्टार्टअप्स निकल रहे हैं. तो यहाँ पे क्यों नहीं निकल सकते? यहाँ पे तो ज़्यादा टैलेंट है, और I'm not saying कि वाकई में ज़्यादा है, बट यहाँ पे गाइडेंस नहीं है लोगों को. अब I can give you an example. There was one of the CVs, और लड़का आया to do the internship, and he mentioned that he did his final year project in a technology that is almost obsolete in the market. जी, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये बहुत सारी जो है आउटडेटेड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, तो इट्स बिकम मोर लाइक अ टेक्स्ट बुक लेगेसी कि शायद उनको ये पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं. लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको समझें, डिमांड को गेज करें, तो उस हिसाब से अडेप्ट करना. I would just like you to just address our youth and any one suggestion with their career decision making.
that what one needs to do. Just you know, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बताया. We have covered a lot. But one thing जो कि आपको कोई आपका पेन पॉइंट आपको लगता है कि ये चीज़ अगर हमारी कॉम के अंदर, हमारी यूथ के अंदर, हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर चेंज हो जाए तो हमारी बहुत से मसले हल हो जाएंगे. Just like वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. कुछ चीज़ें हम बात कर चुके हैं. मिसाल के तौर पे अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हो, अपने शौक़ और पैशन को जानते हुए, और ज़रूरी नहीं आप स्टार्टअप्स ही करें. इफ़ आप इंजीनियर बन रहे हैं तो बेहतरीन इंजीनियर बने, यानी एक्सेलेंस को चेज़ करने की कोशिश करें. आप मेडिकल में हैं तो बेहतरीन डॉक्टर बनने की कोशिश करें. आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो उसको भी अच्छी एक्सेलेंस और अच्छी नीयत से करने की कोशिश करें. पाकिस्तान नीड्स दैट. तो द पॉइंट इज़ एक्सेलेंस को चेज़ कर लें. दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू डू व्हाट यू लव, और फोकस के साथ फिर उस पर स्टिक कर जाएं. यू नीड टू हैव अ ब्लाइंडर्स. फिर लेफ़्ट राइट नहीं देखना जी कि ड्रॉप शिपिंग भी आ गई है, ये भी आ गया, चलो ये छोड़ के ये कर लेते हैं. तो फिर आपने बस अपना वो क्लैरिटी और उसको स्टिक कर जाएं. और हैव मेंटोर्स एंड गुड मेंटोर्स. वो जो भी है इंक्यूबेटर में, ज़रूरी नहीं वो इंक्यूबेटर के हों, या ज़रूरी नहीं उनका यूट्यूब चैनल पे मिलियन फॉलोअर्स हों. जो आप करना चाह रहे हैं वो उधर पहुंचा हुआ है. यू थिंक ही और शी नोज़ दैट. Just shadow him or her. Great. Thank you so much, Farhan bhai. There was a lot that we have learned today. People would have learned a lot today as Hopefully, well. So one just quick advice. आपको अगर कभी भी लगता है कि आपने कुछ करना है तो like Farhan bhai has said, just stick to your plan. Create a myopia, क्योंकि इससे आगे दुनिया नहीं है, और जिस दुनिया में आप चले जाएंगे वो आप फतह करके निकलेंगे बाहर. Thank you so much for being a part of our show. It was very lovely and nice having you. इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, और मैं दुआ करूँगा कि जितना भी हमारा टैलेंट है, we come to a point that we could actually showcase this talent to the international world, कि हम लोग अपना पाकिस्तान का झंडा और बुलंद कर सकें. इंशाल्लाह. Thank you so much for inviting me. बहुत मज़ा आया. Thank you so much. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़ जी.